A very good morning, everyone, and welcome to the Utthan session today. So, today we are in the fifth session of this topic that we started, which was integration of Sabhyata and Satyata in life. And today is the summary session. So, we will have a quick summary first, and then can have question answers from the people in the session today. So, for this, we have Sangeeta Didi, who's already joined us. Didi, welcome to Utthan, Om Shanti, and over to you. Shanti, good morning, all of you, and a very pleasant morning also to all of you. In Delhi, it's very pleasant today, in spite of the summers. So, so all the angels now are very beautiful. They will show their beauty by switching on the videos. Okay, all इशारे से समझने वाले हैं और अपना कल्चर बना लिया. सभी ने अपना कल्चर बना. कौन सा कल्चर? कल्चर ऑफ ऑनेस्टी प्लस कल्चर ऑफ ओबीडियंस. यही एक once in a week this is a school because we have left the school. तो अभी स्कूल के डिसिप्लिन हम इतने अप्लाई नहीं होते, बट दिस इज अ स्पिरिचुअल स्कूल. So therefore we all are very disciplined. And throughout the session we all will be disciplined, right? Consistently will be an angel. So because when we on the video, all of us understand also that we become cautious. We become conscious also. And when we can do, we will inspire many, those who can't do. तो अगर इंस्पिरेशन बनना है तो करके दिखाना. बच्चों को भी अगर हम कहते हैं ना कि वो स्कूल में ऐसे करते हैं या ऑनलाइन में ऐसे करते हैं, if you yourself have done it, though that child is not seeing you now, but you have done it, you are true. So when you speak to them, your vibrations will match your speech, and that will create a powerful impact on the listener, be it a child, be it a friend, or be it a relative. तो इसलिए सत्यता सत्यता एकदम क्लियर. छुपता कौन है? कब हम छुपते हैं? कुछ गलत करते हैं तो वीडियो ऑन करना मतलब एकदम सत्यता, कोई छुपाओ. इज इट ट्रू? जब हम ठीक से नहीं होते हैं ना तो हम छुपाते अपने. तो सब सच्चे हैं. यस, देखो कितने एंजल्स निकल के आते हैं. वंडरफुल. टुडे वुड बी, वी शुड क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू. Clap, everyone should clap. So let us be consistent in what we are. Thank you very much. So I think so it was a wonderful month, and I'm sure you must have found something new on this value system. सत्यता पर सभ्यता. क्योंकि अभी तक हमने सत्यता सुनी है, सभ्यता नहीं सुनी. And therefore because we either were we felt कि सत्य मतलब you should be very harsh, people are very harsh, और आप सत्यता से डरते, बाबा इसके सामने हम करेंगे ना, ये सच्चा बोल देगा तो गया, मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी. So we used to be afraid of honesty. But actually, honesty, if it's a value, it's each and every presentation also has some value. तो सत्यता और सभ्यता is actual, the real honesty. Satyata without sabhyata, without discipline, without culture, without humbleness is no satyata. And therefore, it is anger.
And this is all, therefore we all had shared this, understood this beautiful thing, that when it is satyata means, and satyata is, when satyata with this kind of sabhyata, then it is, बहुत अच्छा बताया, स्वयं सिद्ध है. अगर हमारी सत्यता इस तरह से है तो वो स्वयं सिद्ध है. इट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड. सत्यता ऑफ with integrated with सभ्यता. We don't have to prove. बहुत बार हम कहते हैं आपको विश्वास नहीं होता है, आपको पता नहीं है, but we try to justify, we try to prove. सत्यता is स्वयं सिद्ध. We might have to have little bit patience. Of course, we can speak out what we want, but without anger. This might cause some delay in the result we expected, but ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता है. और इसलिए दोनों बातें, अगर हम गलत भी कर रहे हैं, कोई सोचे कि इतनी गलत कर रहे हैं, उनकी तो इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इट्स ओके. अभी उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो उनका पुराना कमाया हुआ वो खा रहे हैं, उनका भाग्य का वो खा रहे हैं. बट अभी तो कमाई नहीं हो रही है ना. देयर इज नो वैल्यू सिस्टम. देखो ये अभी कमाई नहीं हो रही है, तो ये अभी एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, बड़ों के पीपल आर लाइकिंग इट, they are becoming very popular, they are getting promotion, they are always in the eyes of the seniors. This is temporary if that satyata is not with sabhyata. तो वो टेम्पररी प्रोग्रेस है. और फिर therefore it is automatically proved. अब उनकी एक्चुअल क्या है कि दे माइट बी समथिंग एल्स व्हाट दे सीम टू बी, जो हमको पता है, बड़ों को नहीं पता, सीनियर्स को नहीं पता, उनको नहीं पता, मुझे पता है. बट धीरे धीरे इट विल बी प्रूव्ड. और जब प्रूव होता है ना, तब इस तरह का डाउनफॉल होता है, हम सोच भी नहीं सकते. सो नेवर फील कि देखो ये रॉन्ग होकर आगे बढ़ रहा है, मैं राइट होकर पीछे हूं. नो. इसलिए जो राइट है वो एक्चुअल राइट है, सत्य है, सभ्यता सहित, वो भी प्रूव्ड हो जाएगा. एंड यू जस्ट डोंट नो व्हेन द कार्ड्स विल प्ले द गेम, प्ले द पार्ट, कब टर्न अप हो जाएगा एंड यू विल बी ऑन द लेडर, पॉपुलैरिटी लेडर. यू जस्ट डोंट नो. इसलिए वो जमा हो रहा है. अगर अभी नहीं भी पता चल रहा है लोगों को, लेकिन मेरा एक्यूमुलेट हो रहा है. लेट अस बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माय वैल्यू सिस्टम. क्योंकि अगर अब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे क्या फायदा, ये देखो ऐसे करके इसको तो बहुत आगे मिल रहा है. हमने किया है, परमात्मा सत्य है, मैं सत्य हूं, मेरा भाग्य सत्य है. इट विल बी प्रूव्ड. So having that confident, and therefore you'll always be going, following it. और दूसरा, सत्यता अगर प्रूव करते हैं तो वो सत्यता जिद हो जाती है. सिद्ध करना मतलब जिद होना. नहीं, आई वॉन्ट दिस, आई टोल्ड यू, आई एम वेरी क्लियर. So when you prove actually your satyata, therefore it is not sabhyata. People, though we are really very putting a real efforts, we are really very true, but people won't value us as per the quantum of that truthfulness, because हम प्रूव कर रहे हैं. बिकॉज उस प्रूविंग में स्टबर्ननेस भी आ रही है, उस प्रूविंग में कुछ वोकैबुलरी में रॉन्ग भी आ रहा है, उस प्रूविंग में कुछ एंगर भी आ रहा है. तो इसलिए पीपल, द वैल्यू सिस्टम, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी ट्रू, आई एम नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड अकॉर्डिंग. इसलिए सत्यता जब प्रूव करते हैं
तो वो सिद्ध नहीं, सिद्ध करते तो जिद हो जाती। और दूसरा है ये स्टेटमेंट्स सत्यता में कि आई डोंट लाइक दिस, नो आई कांट बिलीव, मैं, प्लीज बिलीव मी। हम बहुत बार ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, सी आई एम सो ट्रू, प्लीज बिलीव मी। सो एनी काइंड ऑफ दिस फीलिंग, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक अदर्स टेलिंग लाइज, आई एम ट्रू, आई एम ऑनेस्ट, आई कांट टॉलरेट डिसऑनेस्टी, आई गेट वेरी एंग्री इफ अदर्स टेल लाइज। ये जो स्टेटमेंट्स है ना हमारे, ये विदाउट सभ्यता के, तो इसलिए वो सत्यता में शाइन नहीं होती है। कपड़े को प्रेस क्यों करते हैं हम? कपड़ा साफ है नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते हैं ना, प्रेस करते हैं, क्या होता है? शाइन हो जाता है। तो सत्यता विदाउट सभ्यता, उसकी शाइन चली। तो नेवर एवर हैव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, प्लीज बिलीव मी, ये सब, ये सत्यता है। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि सत्यता में ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। सत्यता, तो जब सत्यता, ह्यूमिलिटी भी हो और सत्यता में रियलाइजेशन, व्हेन योर बैलेंस बीइंग ऑथोरिटेटिव एंड ह्यूमिलिटी, ये हमने किया था कि ऑथोरिटेटिव भी होना है लेकिन हम्बल भी होना है। अगर सत्यता में केवल ऑथोरिटी है, वो एंगर में चेंज होता है, और ह्यूमिलिटी नहीं है तो नो जोश। सत्यता मतलब नो जोश। और क्योंकि ह्यूमिलिटी ये एनकरेजिंग एनर्जी है, एंगर डिस्टर्बिंग एनर्जी है, तो सत्यता एंड डिस्टर्बिंग एनर्जी, नॉट राइट। एंड सिमिलरली वी ऑल्सो डिस्कस्ड टू प्रूव ऑनेस्टी, नेवर यूज एंगर, मेक पीपल रियलाइज बट अपलिफ्टमेंट, महसूस भी कराओ, बात राइट बात भी बोलो लेकिन उसको लाइट भी करो। किसी की गलती को हम कहते हैं हम टॉलरेट नहीं कर सकते, मैं तो बता देती हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं बोलती हूँ, मैं सामने बोल देती हूँ, राइट है, मैं सामने बोलती, पीठ पीछे नहीं बोलती। हाउ मेनी ऑफ अस लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज अराउंड अस? रेज योर हैंड्स। मैं सामने सामने बोलती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी माइट अवॉइड देम, डर भी लगेगा। तो रियलाइजेशन कराना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि किसी ने गलती कर दी, भूल गई कोई बात, बाबा ने, हमारे फाउंडर ने एक सिस्टर को एक सेवा दी कि ये तुम, ये प्रसाद है, ये दे देना मुझे, वो भूल गई, उसने आगे किसी को बोला, वो आगे वाली भूल गई, ये भी इसके भी दिमाग से निकल गया बिकॉज शी हैज ऑलरेडी डेलीगेटेड टू समवन। फिर बाबा को बाद में याद आया, बोला वो कहाँ है, वो मैंने जो प्रसाद बताया, वो बॉक्स बोला, बोला अरे बाबा मैं तो भूल गई। बोला तुमने कितनी, जो ये बॉक्स में प्रसाद खाता वो कितनी ब्लेसिंग्स देता, तुमने अपने आप को इतनी सारी ब्लेसिंग से वंचित कर दिया, सो यू हैव डन अ वेरी बिग बिग मिस्टेक। द फाउंडर सेड दिस, तो वो थोड़ा एकदम सीरियस हो गई। फिर दूसरे ही मिनट बाबा ने बोला, बच्चे ड्रामा में कोई भूल होती है, इट इज सेड एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट, तो तुमने कुछ गलती की, तो मतलब लाइट कर दिया, गलती बताई भी बट इमीडिएटली लाइट कर, बिकॉज एवरीथिंग वॉट एवर हैव सो यू फॉरगॉट, मतलब ये भी अच्छा हुआ। तो बताना भी है, हल्का भी करना है। हम सब
ओनली सत्यता मतलब हम बताएंगे, शायद लाइट नहीं करती, और इसलिए डर लगता है फिर। सो सत्यता सभ्यता में realization but upliftment. When we point out others' mistake, should but at the same time uplift him, make him lighter, so that he won't do that mistake again, or he so that his focus is not, his attention is not focused on your vocabulary. क्योंकि हम कभी बहुत गुस्से में बोलेंगे उसको, उसकी गलती को, जो राइट है, जो रियल है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की, तो उसकी पूरी एनर्जी द वे आई एम प्रेजेंटिंग द हिज मिस्टेक उस पे फोकस हो जाती है, न कि अपनी मिस्टेक पर। ये तो देखो कैसे बोल रहे हैं, कितना मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, किस हार्श, कितने हार्श। सो हिज होल फोकस इज ऑन हाउ आई एम प्रेजेंटिंग दैट हिज मिस्टेक इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, because I also am doing a mistake the way I'm presenting his mistake. इसलिए सत्यता सभ्यता, इसलिए वो रिजल्ट नहीं है। ओके, सो दिस वाज द ब्यूटीफुल sharing. ओके, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस आना चाहिए, क्वेश्चंस आया मतलब समझा है, क्वेश्चन नहीं Somebody आएंगे। was raising a hand in the middle when you were speaking. If you want to ask any questions, you can unmute and ask, or maybe type it in the chat box. सो मतलब सभी एग्री कर रहे हैं, रॉन्ग नहीं बात लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब सभी फॉलो करेंगे। अच्छा तो इसमें थोड़ी सी भी सत्यता में ऑनेस्टी doesn't mean straightforward, doesn't mean frank, and doesn't mean openness. ऑनेस्टी पर साथ साथ युक्ति युक्त, इसको हम बहुत अच्छे शब्द में बोलते हैं युक्ति युक्त, कि बताना भी है युक्ति युक्त। जैसे सपोज किसी की कोई चीज रॉन्ग था, अब आपने देखा है, वो आया वहां से, एकदम जोर से डांट पड़ने वाली है, या अब आप उस समय क्या कहेंगे, राइट बोलो तो मिस्टेक, नहीं बोलो तो फिर वो डिसऑनेस्टी होती है। युक्ति युक्त, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। भाई तुमको याद है, मतलब तुमने तुमने ऐसा किया, ये किया, उसने ऐसा, आई डोंट रिकॉल। एक भाई को बोला, देखा भी तो मना भी नहीं कर सकता, झूठ भी नहीं होना चाहिए, आई डोंट रिकॉल, खत्म। युक्ति युक्त वे से उसको प्रेजेंट कर। क्वेश्चन है, फ्यूचर की वरी रहती है, क्वेश्चन है या अपना रिस्पॉन्स है? इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन लेट अस। फ्यूचर की वरी रहती है बिकॉज यू आर ट्रू। एक होता है स्ट्रेस है, एक होता है बिकॉज आई एम सच्चाई, मुझे अपना फ्यूचर स्टेक में लगता है, क्योंकि पूरी जगह पॉलिटिक्स चलती है, बोलते हैं ना लोग, तो इसलिए ऐसे कैसे रह सकते। इफ दिस इज द वे, तो सी एक्चुअली दैट्स व्हाट वी आर सेइंग नो ऑलवेज, कि इवन इन वॉट एवर वे वी आर, कॉर्पोरेट्स हो या कहीं भी हो, when we are talking about truthfulness doesn't mean कि ऊपर मैं अंदर ट्रुथ हूं, और ऊपर या ऊपर अच्छा चेहरा है अंदर कुछ और है।
means I am really feeling that what I am being seen about. Suppose I want to speak good about you, क्योंकि मेरी इमेज आपके सामने अच्छी होनी चाहिए. सो आई वॉन्ट टू बिफोर यू मेरी इमेज बहुत अच्छी, तो वाई नॉट आई फील द सेम. दिस इज कॉल्ड ट्रूथफुलनेस. ये तो डबल फेस हो जाता है ना फिर. माई इमेज बिफोर यू शुड बी गुड मीन्स जो मैं आपके लिए सोच रही हूं वो ही मैं बोलूं. पर हम बोलते जो मैं बोल रही हूं वो मैं सोचूं. सपोज आई से यू आर रिस्पेक्ट, यस सर, ओके सर, यस सर, इट्स वेरी गुड, क्योंकि आपके सामने यू आर माई बॉस, तो आई वॉन्ट टू कीप माई इमेज राइट. So if I'm saying yes, sir, okay, sir, yeah, I agree with it, not just to keep my image, but internally feel it. Why am I agree? Because ये है, ऐसा ऐसा है. Feel it and then do it. Only that transformation. तो दूसरा इमेज नहीं होता है, अंदर कुछ और ऊपर कुछ. So I want to say very sweetly to you, feel the sweetness inside. Why? Here we can, if suppose this is the feeling or this is the question, कि I understand कि basically all of us are souls and therefore everyone is very pure. वो अलग बातें, लेयर्स किसी में ज्यादा है किसी में कम. सो जब इस रियल सच्चाई वी अंडरस्टैंड ऑफ लाइफ, तब हम अगर बोलते भी है ना तो एकदम फील करते हैं उसको कि ठीक है बेचारा, चाहे वो इतना बड़ा गलत काम किया, पर एक्चुअली तो एवरीवन इज अ प्योर सोल. उसके अंदर बहुत ज्यादा लेयर्स है. जैसे मैं व्हाइट कलर से ट्रेवल हुई, आप भी व्हाइट कलर पहने थे, बट बाय द टाइम आई गेट डाउन द स्टेशन आफ्टर 24 hours and you also in the same train, same whiteness, आपकी व्हाइटनेस में जो दाग है, स्टेन्स है, वो डिफरेंट होगा, मेरे में अलग होगा. बट दैट डजंट मीन कि दोनों की क्वालिटी एक ही थी. बट हाउ डिड आई कैरी माई सेल्फ. हम दोनों ने एक ही खाना खाया, एक ही सब कुछ किया था, दोनों की एसी सीट थी, खाना भी वो एक ही था. बट व्हेन आई गेट डाउन, मेरे में कम है दाग, आप में ज्यादा लग गया. इन दैट जर्नी हाउ डिड यू कैरी योर सेल्फ, दैट डिसाइड्स द स्टेन्स पुट यू ऑन द जर्नी. तो जो बहुत रॉन्ग कर्म कर रहे हैं किसी भी पोजीशन में रहकर, बेचारी वो आप है तो वो सोल, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द जर्नी दे हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ डर्ट बिकॉज ऑफ विच वो ऐसे है, बट है तो वो प्योर सोल. सो विद दिस अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग आई कैन हैव गुड विशेस एंड देयरफॉर आई कैन बी वेरी ट्रू बिफोर देम. द सेम स्वीटनेस इनसाइड है, द सेम स्वीटनेस आउटसाइड. एंड तो क्या हो रहा है, मेरा अच्छे कर्म, नाउ हियर द स्पिरिचुअल फीलिंग्स क्लियर होना चाहिए. सो आई हैव वेरी क्लियर एंड ब्यूटीफुल फीलिंग्स इनसाइड whilst I'm respecting and telling all the whatever I'm dealing with you. तो ऊपर भी मेरी अच्छी इमेज है, अंदर भी मेरी फीलिंग अच्छी है. मेरे कर्म किसको कहेंगे, अच्छे कर्म जमा हो रहे हैं. जब कोई डुप्लीकेट होता है ना, कहते हैं देखा ये बटर लगा रहा है, ये ऐसे ही अपने आप को ना ऐसे पुलिंग करके आगे बढ़ने के लिए कर रहा है. तो क्या हो रहा है उसके अंदर, मतलब भाग्य का, ग्रेट एक्शंस का पूंजी नहीं है, जिसको हम कहते हैं पुण्य की पूंजी. तो वो पूंजी नहीं है, बट वो ऐसे ही बटरिंग कर करके, नेगेटिव रॉन्ग कर करके आगे बढ़ रहा है. होगा क्या, व्हाट इज मोर पावरफुल, योर बटरिंग और योर फॉर्च्यून.
What do you feel? What is more powerful? How many of us feel buttering is very powerful? Fortune कुछ नहीं होता है. A या B? Buttering is powerful or fortune is powerful? Fortune. भाग्य जमा हो रहा है मेरा, ये तो जमा होता जा रहा है ना. So it is going on every day. I am very clear. I feel it and I do it. So I am sincere also in respecting you, in telling हाजी to you. तो मेरा श्रेष्ठ कर्म जमा हो रहा है. उसका अभी टेम्पररी थोड़ा आगे दिखेगा, बट उसके शरीर में वो दौड़ रहा है, लेकिन शरीर पूरा थका हुआ है. होगा क्या? थोड़े दौड़ के बाद वो गिर जाएगा. That person cannot be consistent in his growth, in his progress in life. दिक्कत नहीं है. सोल में एनर्जी आती है पुण्य कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ फीलिंग से. दैट सोल इज वेरी पावरफुल. एंड व्हेन दिस इज वेरी पावरफुल, अब आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आप कहीं भी चले जाओ, उस समय, क्योंकि आपके पास भाग्य की पूंजी. जैसे आज जो भी जहां होता है, फाइनली हम क्या कहते हैं, देखो सबका अपना अपना कर्मों का हिसाब है. कि उस समय 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. I don't know how many of you must have had been a witness that time. I was in Bombay. तो सिरिल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बॉम्बे में, एंड स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, एंड सम होटल्स. तो 1:30, 1:30 का टाइम था. तो जो स्टॉक वहां जॉब करते थे, बिकॉज ऑफ द लंच टाइम दे हैड गॉन आउट. एंड एक होटल में हुआ, साउथ बॉम्बे का. 12 o'clock के बाद चेकआउट होता है और चेक इन होता है. तो वन मदर एंड सन, दे हैड कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, एंड इट वाज 1 o'clock व्हेन दे वर इन द रूम. बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दे वेंट अवे. सो दे हैड, इट्स लाइक, क्या बोलेंगे, मौत उसको ऑल द वे वहां से लेकर आया, जस्ट टू हैव दैट फेट. और जो रेगुलर करने वाले वो छुट गए. दिस इज कॉल्ड फॉर्च्यून. कहते किसी की दुआ थी, भाग्य था. अगर हमको आज के इतने अनप्रेडिक्टेबल समय, जो आज हमने इतने किस्से देखा भी रिसेंटली और देख रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को बचा के रखना है, टू बी ऑलवेज सेफ. इट्स आवर पुण्य की पूंजी जो बचा के रखेगा. ये मेरा फॉर्च्यून मुझे हेल्प करेगा, ये मेरी इमेज मुझे नहीं हेल्प कर सकेगी. So what am I bothered of? Just short-term profit or long-term profit? और अगर मेरा भाग्य पावरफुल होता जाएगा ना, बिकॉज आई एम डूइंग वेरी सिंसियरली, आई एम डूइंग वेरी ऑनेस्टली विथ सभ्यता, तो मेरा भाग्य जमा हो रहा है. जब भाग्य जमा होता है, तब कितनी भी नेगेटिव बात हो, आपको मिलना है, आपको मिलेगा ही. हाउ मेनी ऑफ एक्सपीरियंस्ड or seen things happening like that? उसका भाग्य उदय हुआ ना, तब बहुतों की ना, बहुतों के लिए ना हो जाएगी, उसके लिए हाँ हो जाएगी. Have we experienced it for others? Or maybe even for the self? पता नहीं चलेगा, रास्ता ऐसे खुलते जाते कि आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो आपका भाग्य आपके साथ है. So therefore let us not be short-term vision, have a long-term benefit. और लॉन्ग टर्म में क्या, यू जस्ट डोंट नो व्हाट दिस सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, दुआएं. मैं रास्ते में चल रही हूं, कुछ ऐसा होना था, दुआएं थी, मैं बच गई. वी आर लिविंग, वी आर वॉकिंग, वी आर लिविंग इन द फेज ऑफ अनसर्टेनिटी.
पता नहीं क्या हो जाए, केवल हमारा ये पुण्य की पूंजी हमें हेल्प करे, और यही, एंड फिर वो ग्रोथ होता है। इसलिए जब वो भाग्य पावरफुल होता है ना, हम कहते हैं मैंने ये शेयर लिया, पता नहीं इतना एस्केलेट हो गया, और अच्छा खासा स्टडी करके दूसरा शेयर लिया, वो डाउन हो गया। क्या था उसका? इट इज योर फॉर्च्यून। देयर कैन नॉट बी एनी हिंड्रेंस इफ मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। नो हिंड्रेंस ऑफ situations, people, money, nothing, because my fortunes. So we are not, will do the our image also is okay, and our growth also थोड़ा स्लो हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी निगेट। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एवरीथिंग विल कम टू द लाइमलाइट ऑटोमेटिकली। वी हैव सीन, नो, समटाइम दिस पार्टी गोज अप, समटाइम दिस पार्टी गोज अप, समटाइम दिस, जो क्लेम कर रहे हैं वो तो मेरा बहुत विक्ट्री होती, बहुत, क्या हो रहा है, सबका अपना अपना भाग्य है ना। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वन कैन रिमेन ऑथेंटिक एंड देयर वोंट बी एनी ग्रोथ। रिस्क, देयर इज नो रिस्क ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ होना ही है, थोड़ा ऊपर नीचे स्लो डाउन हो सकता है, बट होकर रहेगा, देना ही पड़ता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, वो कहावत है, भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। कैसे देता है? क्योंकि तुम्हारा इतना जमा था, उसको देना है। ही हैज टू गिव इट, एंड यू जस्ट डोंट नो हाउ यू वुड गेट इट। दिस इज कॉल्ड भाग्य। इसलिए कहते हैं रैग्स टू रिचेस स्टोरीज, होता है ना, आई वर्ड मेनी सच स्टोरीज। इट इज दिस। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑनेस्ट, सत्यता विद सभ्यता, और इमेज कॉन्शियस। और वैसा इमेज भी, सपोज मैं जो कह रही हूं, आई एम नॉट लिविंग दैट लाइफ, आई एम प्रेजेंटिंग यू वेरी नाइसली, बट आई एम नॉट लिविंग दैट लाइफ बिकॉज आई डोंट बिलीव इट। कितने समय तक को आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी? कि आप कहेंगे ये सब फेक है, फेक बातें, बिकॉज आई डोंट बिलीव इट। सो इमेज कॉन्शियस व्हेन वी आर, हम बिलीव नहीं कर रहे इसलिए खाली ऊपर का दिखा रहे, बट एक्चुअली द स्ट्रेंथ किसकी आती है? टाइम पर ताकत किसका पता चलेगा? जिसने खाया है। खाली ऐसे मोटापा होने से क्या हो जाएगा? सामान उठा लेंगे, अंदर ताकत ही नहीं, पर वो जो खाया है ना, वो ताकत होती है। सो वॉट एवर आई टॉलरेटेड, सपोज, बिकॉज इन द complex scenario going on around me, I've tolerated, I've been sincere, but others are taking my credit. मैंने जो है वो बता दिया, तो उसको मुझे साइडलाइन किया। सो मे बी आई माइट हैव, आई एम सीइंग दिस सीनरी, scenes around me, provided my सत्यता is with सभ्यता, that I have to take into consideration। ऐसा नहीं मैं सत्य हूं सिर्फ, द वैल्यूज दोनों में जरूरत, इट शुड बी बोथ द वैल्यूज। तो इफ एट ऑल आई बीन दिस, तो थोड़ा मेरे को उसको आगे देखेंगे, लेकिन मेरे अंदर बहुत ताकत है। माई सोल इज वेरी पावरफुल, एंड देयरफॉर इफ एनी सिचुएशन होता है ना, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावरफुल है वही बचेगा, जो नहीं पावरफुल है वो क्रैश हो जाएगा। कब तक चलेगा उसका? नहीं चल सकता। दैट इज द रीजन। तो इसलिए ऑनेस्टी इज नॉट डरने वाली चीज। ऑनेस्टी मतलब आपका बिजनेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल
दुनिया में क्या ज्यादा है, झूठ ज्यादा है या सच ज्यादा है? बताओ अर्चित बहन, बताओ। झूठ ज्यादा है या सत्य ज्यादा है? राय, झूठ ज्यादा है ना, तो आपका प्रोडक्ट तो वैसे ही बिकेगा ज्यादा, बिकॉज आपकी जैसी पर्सनालिटी बहुत कम है लोगों दुनिया में. Why won't you be hired? Why won't you be taken to the ladder up? Why people won't buy from you? They will, because बहुत कम है ऐसे लोग. Whole Brahma Kumari's foundation is on this सत्यता. कुछ चार्ज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं. There is so much vast expansion सत्यता के आधार. सत्यता चलता रहेगा और बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा. झूठ फास्ट बढ़ेगा, स्टॉप हो जाएगा. ऑलवेज प्रोग्रेस चाहिए. एंड मोर इम्पोर्टेंट है, आई शुड एंजॉय दैट प्रोग्रेस ना. मैं लेग पुलिंग कर करके सपोज मैं आगे बढ़ रही, एम आई एंजॉइंग दैट स्टेटस गिवन टू मी बाय द सीनियर्स बिकॉज जस्ट आई एम फॉरवर्ड? कैन आई एंजॉय इट? मेरा सारा ध्यान रहता है कहीं आगे ना बढ़ चला जाए. जेलेसी चलती रहती, स्ट्रेस चलता रहता. सो इवन विस्ट having the good position but without honesty, I won't enjoy it. और इस तरह लेग पुलिंग करके मैं धन लेके आ रही हूं घर में, and I'm using that wealth to feed the children. So that wealth is mixture of dishonesty plus money. I'm giving the children. What do you feel the offspring will become like? क्या उनमें सच्चाई रहेगी? इसलिए वो हेलो हेलो डैडी कैसे हो, बोला आजकल के बच्चों में दिल ही नहीं है, पूछने के लिए फुर्सत नहीं है, ऊपर ऊपर से बोल देते हैं. क्योंकि हमने जिस कौन से धन से उनको ग्रो किया, कि चाहे कम हो पर सत्यता वाला, विदाउट जेलेसी का हो, विदाउट लेग पुलिंग वाला धन हो, वो धन लेके जाओ घर में, ताकि वो धन सुख दे. नहीं तो वो धन इतना ज्यादा तो होता है, लेकिन एक तो वो सुख, मतलब बच्चों में इस तरह की भावनाएं, बिकॉज सोल फीलिंग्स पार्ट ग्रहण करती है, शरीर धन का पार्ट ग्रहण करता है. सो द फीलिंग्स बिहाइंड द वेल्थ वो सोल लेती है. एंड देयरफॉर द चिल्ड्रन आर बिकमिंग वेरी रूड, दे आर नॉट केयरिंग फॉर मी. एंड तो इस कारण वो जो धन, वो जो पालना है, वो उस समय भी एंजॉय नहीं कर सकते और बाद में भी नहीं एंजॉय कर सकते. तो इसलिए थोड़ा सा धन हो लेकिन सच्चाई का हो, और वो देखो वो घर में वो कितना अच्छा प्लांट ग्रो करता है, सुख लेने वाला है. बहुत ज्यादा ऐसा धन कमा के तो ला देते हैं, हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं प्रॉपर्टी के झगड़े, बहुत बड़ी बड़ी मेंशन है, लेकिन माँ और बेटे के बीच में झगड़े हो रहे, टू द एक्सटेंट कि माँ ने पूरा हस्बैंड के सारे बिजनेस को अपना ओनरशिप ले लिया. आई डोंट वांट टू गिव द son because he is marrying the child of not my choice. So I don't want to give this property in Greater Kailash. I don't want to give this. I will take my business. So पूरा बिजनेस ले लिया. माँ और बेटे के अंदर इतना झगड़े हो रहे, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है, एंड द हस्बैंड इज बिकमिंग अ सैंडविच. तो जो धन अगर हम सुख दे के लाएंगे ना, वो सुख देगा, आपस में प्यार करे देगा,
और नहीं तो वो धन केवल झगड़े में जाता है। या तो हॉस्पिटल में जाएगा या एडवोकेट्स जजेस कमाए, ये एडवोकेट्स कमाएंगे, ऐसा ही जाए। सो लेट अस बी प्रोग्रेसिव बट विथ कंसिस्टेंट। एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री विथ इट? Is it important in my practical day-to-day life? Or is it just a workshop? Yes. All of you are very fortunate understanding the session, and I'm sure it will work on us if we really review it. Do listen it again. Sometimes कभी हम सोचते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं, क्या करें, ये करे वो करे, सत्य बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल. Just go through these kind of sessions. And it will create a energy in the soul. बस वो चाहिए होता है, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, कर कुछ भी सकता है व्यक्ति. ठीक है? सो बी ट्रू बट विथ सत्य. सो विल टेक दैट एनर्जी. परमात्मा सत्य है, उसके साथ कांटेक्ट से एकदम सत्य एनर्जी आती है. और जितनी जितनी हमारी में एनर्जी सत्य होती है, हम इट बिकम्स नेचुरल एंड वेरी इजी फॉर मी टू बी ट्रू. 2 मिनट्स हम अपने आप को सब बातों से फ्री. I am a very truthful soul, very powerful soul. अब हम चलते हैं परमात्मा के पास, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं. सत्य है, बाय द सोल. उनके पास पहुंचते हुए who is the truth, epitome of truth. शिव बाबा सत्यता का सागर. मुझे कंप्लीट सत्य एनर्जी उसमें मिलती है. Powerful energy of truthfulness. I am filling myself with this energy. It is the need of the hour. Volume कम. उसकी पूरी सत्यता की एनर्जी मेरे में आ गई है. आई एम अ ट्रू ऑनेस्ट सोल विथ सभ्यता. And now come down in this body. पर मैं आत्मा सत्यता की शक्ति से भरपूर. और I'm spreading the vibrations of सच्चाई,
मैं जो देख रही हूँ उसमें सच्चाई, मैं जो बोल रही हूँ उसमें सच्चाई. I have good wishes and that's what I'm seeing. I'm radiating. I am a true, honest soul. Shanti. Shanti. So this homework will be there, not for this month, for how many days this homework will be there? For the whole life. You all are youth in your age. This is the foundation of the life also. Build the building of life of honesty, not of buttering. And therefore see how powerful the building is amidst even severe storms. Okay? All the best for that. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the session today. And thank you to everybody for joining. We will meet the next week with a new topic. Till then, let us practice of being Sabhya and believing in the power of Satya. So, thank you. Have a nice day. Om Shanti.